Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyid Murtaza Rabbani. Hope you all are fine. Since in last lecture we have already discussed the breathing, that is how the gases are exchanged between the environment and the lungs. So environment से lungs में कैसे gases आ जाते हैं during breathing. So during the inspiration, the gases are taken from the environment into the lungs. So this process is called what? Inspiration. So यहाँ पे oxygen rich air आ जाता है from the environment into the lungs. Number next, उसके बाद number next process that is expiration. So expiration के दौरान क्या हो जाता है? lungs से gases बाहर जाते हैं. कहाँ पे? environment में. So अब हमें ये पता है कि अब हमारे lungs में जो gases हैं they are now present in our lungs. Now next step is, in the next step of our respiration, what we have, there occurs the exchange of gases. So exchange of gases कैसे होता है? Exchange of gases occurs at two places. पहला place between the alveoli and the blood. So जब alveoli से oxygenated air यहाँ पे transfer होता है, means oxygen is diffused from the alveoli into the blood. So this is one exchange. Now next we have, from the blood carbon dioxide is diffused. So oxygen is diffused from the alveoli into the blood, whereas carbon dioxide is diffused from the blood into the alveoli. So this is one exchange at the alveoli. Now next we have at the tissue level. So tissue level पे क्या होता है? यहाँ पे exchange होता है between the tissues and the blood. So what happens from the tissues? Carbon dioxide is produced in the tissues due to various metabolic activities. So from the tissues, what is diffused? Carbon dioxide is diffused from the tissues into the blood, while oxygen is diffused from the blood into the tissues. So this is the exchange of gases. So मैंने आपको बताया जो exchange of gases होता है, exchange of gases होता है either between the alveoli and the blood or between the tissues and the blood. So alveoli और blood के दरमियान ऑक्सीजन और blood और alveoli के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे टिश्यूज और blood के दरमियान क्या एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और आपके blood से टिश्यूज में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन. So now next what we will discuss over here, जो ये alveoli की अगर हम बात करेंगे, at the alveoli where the diffusion of gases takes place between the alveoli and the blood vessels, this is called as respiratory membrane. इस membrane को हम क्या बोलते हैं बेटा? Respiratory membrane. It is called as respiratory membrane, or it is also called as diffusion membrane. So simply the exchange of gases occurs simply by the process of diffusion, from the alveoli into the blood. Now please have a look. ये जो respiratory membrane हमारे पास होता है, now please have a look respiratory membrane क्या actually होता है. जो हमारे alveoli, for example this is alveoli, एक को हम बोलते हैं alveolus. So अगर ये alveoli की बात करेंगे, जो alveoli का inner membrane होता है, जो alveoli का membrane होता है, that is lined by simple squamous epithelium. So it is lined by simple squamous epithelium. So this is simple squamous epithelium. So ये जो cells है, ये है हमारे पास simple squamous epithelium. Now please have a look. Simple squamous epithelium, and this simple squamous epithelium, it rests on a membrane. That membrane is called as basement membrane. ये simple squamous epithelium जो है, it rests on a membrane. That membrane is called as basement membrane. Please have a look. So ये वाला जो है हमारे पास, it is simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Now this lies on, or it rests on a membrane that is called as basement membrane. So this is our basement membrane. Fine. उसके बाद now next we have the third one that is called as, जो blood vessels होते हैं, blood vessels में यहाँ पे ये blood vessels in simple, यहाँ पे endothelial layer होता है. Fine. So now please have a look.
अगर इसकी बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं। नाउ प्लीज हैव अ लुक, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर 1, अगर आप लंग्स की बात करोगे, फ्रॉम द लंग साइड इट इज मेड अप ऑफ दिस लेयर ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वैमस epithelium. It is called as simple squamous epithelium. This inner layer which is present in the alveolus या alveoli में जो लेयर होता है, it is called as simple squamous epithelium. उसके बाद this layer lies on this membrane, it is called as basement membrane. Basement membrane. Epithelial tissues की खासियत होती है, they lie on a membrane that is called as basement membrane. So this is the basement membrane. उसके बाद जो थर्ड वाला है, this is endothelium. So blood vessel का layer है, it is called as what? Endothelium. So this is endothelium. Fine. एंडोथीलियम. सो अगर मैं कहूं जो हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देयर आर 3 लेयर्स. पहला लेयर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद दिस वन इज व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर थर्ड वी हैव व्हाट? दैट इज द एंडोथीलियल लेयर. कौन सा लेयर? एंडोथीलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स. एंडोथीलियल लेयर या एंडोथीलियम. Endothelial layer. So these are the 3 layers: simple squamous epithelium, number next is basement membrane, and number third is what? Endothelial layer. अगर इस membrane की अगर आप बात करोगे, the thickness of this membrane is less than 1 millimeter, 0.1 millimeter, 1 millimeter, 1 mm. सो इसकी थिकनेस होती है 1 mm. सो ऐसे मेम्ब्रेन की अगर आप बात करोगे जिसकी थिकनेस होगी कितनी? लेस देन 1 mm. सो अगर इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होना होगा, सो डिफ्यूजन विल बी वेरी इजी बिकॉज द थिकनेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज वेरी लेस. सो मैंने आपको बताया कि पहला मेम्ब्रेन जहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स. सो लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो मेम्ब्रेन, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. एंड दिस respiratory membrane, it consists of how many layers? 3 layers. पहला layer simple squamous epithelium, दूसरा layer basement membrane, and the third one we have what? Endothelial layer. These are the 3 layers which form the respiratory membrane. Now number next, so this is the first thing. So respiratory membrane जो होता है, इस membrane पे क्या हो जाता है? यहां पे होता है exchange, यहां पे होता है exchange of carbon dioxide and exchange of oxygen between the alveoli and the blood vessels. So number next देखेंगे जो हमारा दूसरा पार्ट है, that is number next we have solubility. So अगर नहीं, पहले आप देख लीजिए जो यहां पे exchange of the gases होता है, it simply occurs by diffusion. It simply occurs by what? Diffusion. So diffusion आपको पता ही होगा, diffusion is simply the movement of the molecules from the higher concentration to the lower concentration. लेकिन यहां पे जो diffusion होता है वो होता है from the higher partial pressure to the lower partial pressure. So from the higher partial pressure to the lower partial pressure. So यहां पे movement of gas होता है from the higher partial pressure to the lower partial pressure. Please have a look. देखो यहां पे आप, अब आप कहोगे सर व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? बेटा आप ख्याल रखिए, नॉर्मली हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. वी हैव मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज एयर. So air को हम क्या कहते हैं बेटा? Mixture of gases. So air is a mixture of gases. So in air there are different gases like we have oxygen, we have carbon dioxide and so on. So अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ये सब गैसेस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं ये बनाते हैं एयर को. और जब एयर की बात करोगे, एयर इन गैसेस की वजह से एयर में एक प्रेशर आ जाता है, उसका हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. और एयर का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 760 mmHg. 760 mmHg. Now air consists of different gases. ऑक्सीजन है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास. अब पार्शियल प्रेशर हम किसको कहते हैं? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by an individual gas in the mixture of gases. So एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सराउंडिंग गैसेस, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर. सो जब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगी यहां पे मैंने बोला डिफ्यूजन होता है ड्यू टू फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ओवर हियर? इट इज द
pressure exerted by an individual gas in the mixture of gases. So हमारे पास यहाँ पे दो gases important है respiration के लिए, that is oxygen and carbon dioxide. So oxygen की अगर आप बात करोगे, oxygen की concentration अगर आप air में देखोगे, that is about 20.086. Sorry, 20.86. Like this percentage is of oxygen in the air. So we will take it roughly to be 21%. अगर हम 21% इसको मानेंगे, now 21%. अब इसी 21% जो एयर ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 760 mmHg. व्हाट इज दिस 760 mmHg? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर. किसका पार्शियल प्रेशर है? एयर का पार्शियल प्रेशर है 760 mmHg. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 159 mmHg. सो अगर हम इंडिविजुअल एक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखेंगे इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द एयर, इन द एटमॉस्फेयर, यू विल फाइंड दिस दैट द partial pressure of oxygen comes out to be how much? 159 mmHg. शाबाश. इसी के साथ अगर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर हम चेक करेंगे, since the concentration of carbon dioxide in the air is 0.03%. So it is 0.03%. इसी परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 760 mmHg के साथ, and it comes out to be 0.3 mmHg. So the partial pressure of carbon dioxide in the air or the atmosphere is how much? 0.3 mmHg. ऑक्सीजन का कितना है? 159 mmHg. So अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मींस 159 mmHg एट हायर लेवल, सो वहां से कहां आएगा? जहां पे कम होगा. सो शाबाश. सो मैंने आपको बोला एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट द alveoli occur simply by the diffusion. और डिफ्यूजन यहां पे होता है मींस फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ a gas to the lower partial pressure of gas. सो हायर पार्शियल प्रेशर जहां गैस का होगा, वहां से गैस डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द साइड वेयर देयर इज a lower partial pressure. So जैसे मैंने आपको बोला, what is partial pressure? It is simply what? Pressure exerted by an individual gas on the other gases, on the mixture of gases or the surrounding gases. शाबाश. So यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 159 mmHg. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3 mmHg. So यहाँ पे मैंने आपको बोला, नंबर फर्स्ट we have, so in exchange of gases there are three very important factors which regulate the exchange of gases. पहला है, that is first thing which is with us, that is the respiratory membrane or the diffusion membrane. और diffusion membrane मैंने आपको बोला, it is made up of how many layers? 3 layers. Simple squamous epithelium. Number next we have basement membrane, and the third one we have endothelial layer. So this is the first one. Number second की अगर हम बात करेंगे, that is the solubility of gas. That is the solubility of gas. देखिए बेटा, जिस गैस की जितनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी, इफ अ गैस इज मोर सॉल्युबल इट विल बी मोर डिफ्यूज्ड. सो मोर सॉल्युबिलिटी मोर डिफ्यूजन. जो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो गैस उतना ज्यादा डिफ्यूज होता है या ज्यादा डिफ्यूजन दिखाता है. सो मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, मोर इज द डिफ्यूजन. सो अगर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करोगे, द डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25%, 20 to 25 times more than oxygen. More than oxygen. It is more than oxygen. So carbon dioxide की जो solubility है, it is how much? 20 to 25 times more than the carbon dioxide. इसीलिए जिस गैस की ज्यादा solubility होगी, वो गैस ज्यादा क्या होता है? डिफ्यूज होता है. So मुझे बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मोर डिफ्यूज होता है या मोर इसकी solubility है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ज्यादा डिफ्यूज कौन होगा बेटा? ज्यादा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा. Because its solubility is more, and this solubility कौन ज्यादा diffuse होगा? It is governed by a law that is called as Henry's law. सो हेनरी के लॉ के मुताबिक अगर आप हेनरीज लॉ की बात करोगे, हेनरीज लॉ में जो डिफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू वी हैव डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय एस. So what is delta P? It is actually the partial pressure difference between the two partial pressures. So difference of the two partial pressures, it is called delta P. And what is S? It is solubility. So जिसकी जितनी ज्यादा solubility होगी, वो ज्यादा क्या होगा? Diffuse होगा. So carbon dioxide की ज्यादा solubility है, इसीलिए carbon dioxide क्या होता है? ज्यादा diffuse as compared to oxygen. So मैंने आपको बताया 3 factors are very important. Number first,
the width or the thickness of the respiratory membrane or the diffusion membrane. Number next मैंने बोला solubility of the gas. So यहाँ पे मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड की solubility क्या है, ज्यादा, while as जो आप ऑक्सीजन की बात करोगे उसकी solubility क्या है, कम. So ज्यादा डिफ्यूज कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों, solubility क्या है, ज्यादा, while as ऑक्सीजन की solubility क्या है, कम. So यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो किस पे भी डिपेंडेंट रहता है, solubility पे. So पहला that is diffusion membrane, दूसरा we have solubility, and the number third we have that is partial pressure gradient. Please have a look. उसके बाद number third we have partial pressure gradient, which is very important. So partial pressure gradient, partial pressure gradient, change in the partial pressure from one region to another. Now please have a look. So partial pressure की अगर आप बात करोगे, जो partial pressure होता है, मैंने अभी आपको बताया, partial pressure is simply the pressure exerted by a single gas on the mixture of gases or the surrounding or on the surrounding gases. Now please have a look. So यहाँ पे मैंने बोला partial pressure is simply, what is partial pressure? Pressure exerted by a single gas or the surrounding gases. So अभी मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन राउंड अबाउट इट इज 21%, एंड सो इसी ऑक्सीजन की बात करोगे, ये जो 21% ऑफ ऑक्सीजन है, 20 पॉइंट समथिंग है, दैट इज 20.86. सो ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे, इट कम्स आउट टू बी 21% अप्रोक्सीमेटली. सो 21% ऑफ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, ये ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सराउंडिंग गैसेस. सो टोटल सराउंडिंग गैसेस का प्रेशर कितना है, 760 mmHg. सो ये ऑक्सीजन लोनली अकेला बाकी गैसेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट इज डिनोटेड बाय PO2. नंबर नेक्स्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सराउंडिंग गैसेस. सो इट कम्स आउट टू बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहां पे कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की 0.303%, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 760 mmHg, which comes out to be 0.3 mmHg. So this is the partial pressure of carbon dioxide in the air, and this is the partial pressure of oxygen in what? So iska partial pressure comes out to be 159 mmHg. So this is the partial pressure of oxygen in the atmosphere. Now please have a look. We will discuss the different partial pressures at different levels in our body. हम देखेंगे कि किस किस जगह पे कितना पार्शियल प्रेशर होता है. Now please have a look. अगर हम यहां पे लिखेंगे गैस लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. प्लीज हैव अ लुक बेटा. यहां पे नंबर फर्स्ट वी हैव, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, नंबर फर्स्ट एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में मैंने अभी आपको बताया जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, दैट कम्स आउट टू बी 159 mmHg. फाइन. उसके बाद में नेक्स्ट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करोगे, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है, दैट कम्स आउट टू बी 0.3 mmHg. फाइन. उसके बाद अगर एटमॉस्फेयर के बाद अगर हम बात करेंगे अल्वियोलाई की बात करेंगे, अल्वियोलाई, सो लंग्स में, सो लंग्स की अगर आप बात करोगे, यहां पे अल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, दैट कम्स आउट टू बी 104 mmHg. फाइन. उसके बाद अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे, कहां पे, इन द अल्वियोलाई, इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 40 mmHg. बेटा ये आपको मेमोराइज करना है, देयर इज नो अदर शॉर्टकट फॉर द सेम, सो यू हैव टू मेमोराइज इट. सो उसके बाद अल्वियोलाई, सो एटमॉस्फेयर में, उसके बाद अल्वियोलाई. देन नंबर नेक्स्ट वी हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर आप बात करोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दैट इज
40 mmHg, 40 mmHg. Then we have number next कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करोगे यहां पे होता है 45 mmHg. फाइन. उसके बाद नंबर नेक्स्ट वी हैव ये दो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद वी हैव थर्ड वन दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर आप बात करोगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस ऑक्सीजन इज 95 mmHg, while as the partial pressure of carbon dioxide is 40 mmHg. Fine. Then last we have at the tissue level. So tissues की अगर आप बात करोगे, in tissues we have carbon dioxide, or we have the partial pressure of oxygen that is 40 mmHg, while as the partial pressure of carbon dioxide is 45 mmHg. प्लीज बेटा आप ख्याल रखिए, मेहरबानी करके आप ख्याल रखिए. आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं. यहां पे मैंने आपको बताया अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, दैट इज हाउ मच 159 mmHg. सो मुझे बताओ यहां पे एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159 mmHg, व्हाइल एज जो हमारे अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर होता है बेटा, वो होता है 104 mmHg. मुझे बताओ, मैंने आपको बताया यहां पे डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होता है, मीन्स फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर द गैस इज डिफ्यूजन. यहां पे पार्शियल प्रेशर इसका एटमॉस्फेयर में कितना है, ऑक्सीजन का 159 mmHg, व्हाइल एज अल्वियोलाई में कितना है 104 mmHg. सो यहां पे जो ऑक्सीजन है इट विल मूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अल्वियोलाई. बात समझ आ रही है. सो हायर पार्शियल प्रेशर, लोअर पार्शियल प्रेशर. बात समझ आ रही है, शाबाश. सो अल्वियोलाई के बाद नंबर नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पे हायर पार्शियल प्रेशर, यहां पे कितना पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg. सो 104 mmHg से यहां पे जो हमारे अल्वियोलाई से यहां पे ब्लड में, यहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जो ऑक्सीजन है वो इसमें आ जाएगा. सो फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर. सो अब जो हमारा ये वाला ब्लड है ये क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्यों, जब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, सो वो क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या आएगा पार्शियल प्रेशर 95 mmHg. बेटा जब यही ब्लड कहां पहुंचेगा, टिश्यूज के पास. सो टिश्यूज की बात करोगे, जब टिश्यूज के पास पहुंच जाएगा, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का 40 mmHg, बाहर कितना पार्शियल प्रेशर 95 mmHg. मुझे बताओ ये ऑक्सीजन जो है विल इट मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, डेफिनेटली फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बिकॉज बाहर से पार्शियल प्रेशर कितना है 95 mmHg, अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है 45 mmHg. सो डेफिनेटली द ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज. बात समझ आ रही है. सो ड्यू टू दिस रीजन मैंने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, यहां पे सिंपल डिफ्यूजन की वजह से, from a higher partial pressure to the lower partial pressure the oxygen or the different gases travel. So यहां पे देखो higher partial pressure, lower partial pressure. So from higher partial pressure gas travels to the lower partial pressure from the atmosphere into the alveoli, then from alveoli to the deoxygenated blood, then from here into the oxygenated blood. अब oxygenated blood में कितना 95 mmHg. So from oxygenated blood the oxygen moves or is diffused into the tissues, because tissues में जो partial pressure है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. शाबाश. नाउ प्लीज हैव अ लुक बेटा. अब नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहां पे अगर हम बात करेंगे अपने टिश्यूज की, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है बेटा 45 mmHg, व्हाइल एज in case of oxygenated blood how much partial pressure, what is the partial pressure, it is 40 mmHg. so यहां पे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिफ्ट होगा या डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड. सो यहां पे अब यही ब्लड जब आगे बढ़ेगा तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ये इस ब्लड को क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो नाउ दिस मूव्स ऑन. अब अल्वियोलाई की बात करोगे, अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा 40 mmHg, व्हाइल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 45 mmHg. सो द गैस विल, कार्बन डाइऑक्साइड विल ट्रैवल फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. हायर पार्शियल प्रेशर कितना है 45 mmHg और ये किसका है, ब्लड का. सो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहां, अल्वियोलाई में. सो वंस द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द अल्वियोलाई. उसके बाद आप
देख लीजिए आपके एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 0.3 mmHg और आपके लंग्स में कितना 40 mmHg. So definitely it will travel from here to here. So this is the way how the partial pressure, due to the difference in the partial pressure, the gases are diffused from the higher partial pressure to the lower partial pressure. So मैंने आपको बताया there are three factors which are very important for the exchange of gases. So number first is diffusion membrane or the respiratory membrane, जिसकी thickness 1 mm less than, which is less than 1 mm. Number next, which is made up of 3 layers. Number next मैंने बोला solubility. So number third is partial pressure gradient. So these are the different partial pressures at different levels in our respiratory tract or different body parts. So अब मैं दिखाऊंगा आपको. Let us check how the blood, how these different gases, they are diffused from the lungs, from the alveoli to different parts, are how they reach the tissues. So number first we have, now please have a look बेटा, please ख्याल रखिए आप. अगर मैं यहाँ पे याद रखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे for example this is the alveoli, this is alveoli, एक को हम बोलते हैं alveolus. अगर अल्वियोलस की आप बात करोगे, अल्वियोलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, सो पहले बाहर एटमॉस्फेयर से आता है. एटमॉस्फेयर की आप बात करोगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाउ मच इट इज 159 mmHg. बात समझ आ रही है बेटा. उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप कहां देखोगे एटमॉस्फेयर में, दैट इज 0.3 mmHg. ठीक है बेटा. नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पे, अल्वियोलाई में. ये कितना होता है बेटा, इट इज 104 mmHg. ठीक है बेटा. उसके बाद अगर इसी पार्शियल प्रेशर की आप बात करोगे, नाउ अल्वियोलाई, अब अगर हम लंग्स की बात करेंगे, सो दीज आर द अल्वियोलाई व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स. अब अगर हम आगे देखेंगे, नाउ वी हैव द ब्लड वेसल्स. सो यहां से फॉर एग्जांपल, यहां से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो लेट मी मार्क दिस विद सॉरी, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला ऑक्सीजनेटेड, यहां से डीऑक्सीजनेटेड. नाउ प्लीज हैव अ लुक. सो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 104 mmHg. उसके बाद अगर आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करोगे, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे अभी जो हार्ट से लंग्स की ओर आता है, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज 40 mmHg. 40 mmHg. बात समझ आ रही है. सो शाबाश, मुझे बताओ, यहां पे पार्शियल प्रेशर 104, यहां पे 40. सो एयर विल बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम द अल्वियोलाई इनटू द ब्लड. सो शाबाश, जब ऑक्सीजन अब आएगा, सो अब मुझे बताओ, ये वाला ब्लड जो हमारे पास है, नाउ व्हाट इज एडेड इनटू इट, ऑक्सीजन. सो अब इसी ब्लड को आप क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यहां पे इसका जो पार्शियल प्रेशर है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज it is 95 mmHg. 95 mmHg. फाइन. सो अल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg. देन यहां पे हाउ मच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg. उसके बाद ये हार्ट में चला जाता है, एंड फ्रॉम द हार्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. प्लीज चेक द डायग्राम ऑन योर टेक्स्ट बुक, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रॉ दैट डायग्राम ऑन योर बुक. सो नंबर नेक्स्ट, सो यहां पे ये ब्लड जब, अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहां जाएगा, ये जाएगा टिश्यूज में. फॉर एग्जांपल दीज आर आवर टिश्यू सेल्स. फाइन. अब टिश्यूज की बात करोगे, जो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट इज 40 mmHg. कितना बेटा, 40 mmHg. मुझे खुदा के लिए बता दो, यहां पे पार्शियल प्रेशर 95 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज में कितना 40 mmHg. सो नेचुरली द ऑक्सीजन और द गैस विल बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम ए हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर, मींस फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द टिश्यूज. सो यहां से आएगा कहां, टिश्यूज में. सो ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स विल मूव इनटू द टिश्यूज. बात समझ आ रही है. जहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg. उसके बाद नंबर नेक्स्ट, एंड दिस ब्लड मूव्स कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड. अब देखो नंबर नेक्स्ट, अब यहां पे अगर आप बात करोगे, यहां पे टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करोगे, पार्शियल प्रेशर यहां पे 45 mmHg है बेटा. कितना है, 45 mmHg. सो इन द टिश्यूज वी हैव हाउ मच पार्शियल प्रेशर, 45 mmHg. सो यहां पे इन द टिश्यूज 45 mmHg. व्हाइल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे, दैट कम्स आउट टू बी 40 mmHg.
कितना है बेटा 40 mmHg। मुझे बताओ खुदा के लिए। सो यहां ज्यादा है, टिश्यूज में क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज इट विल मूव फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड वेसल्स। सो यहां पे जो ब्लड अब बनेगा उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसी का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें आप देखोगे दैट इज 45 mmHg। And this deoxygenated blood is carried to the heart, from where it is carried to the lungs. So यहां पे अगर हम देखेंगे जब यही ब्लड यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? लंग्स के पास। सो यहां पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 45 mmHg। और लंग्स में अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स इज हाउ मच बेटा? इट इज 40 mmHg। मुझे बताओ। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहां पे 45 mmHg कितना है बेटा? 45 mmHg। लंग्स में कितना है बेटा? 40 mmHg। मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है कि अल्वियोला में ज्यादा है? बाहर ज्यादा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो इट विल मूव, सो द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द अल्वियोलाई। सो यहां पे ऐसे होता है डिफ्यूजन। सो ऐसे मैंने आपको बताया कि ऐसे होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द अल्वियोलाई टू द ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड into the alveoli and from in the tissues, from the blood into the tissues and from the tissues into the blood. So this is all about the exchange of gases. Now in the next topic we will discuss the transport of gases. उसके बाद खाली एक ये रहता है हमारा एक टॉपिक रहता है, that is all about it. Thank you so much.